Yes, good afternoon to one and all. Today I will discuss about the condensing plant and the circulating water system. This is the part of Unit 2. The subject name is the power plant engineering, 7th semester. The outline about today lecture is the introduction of steam condenser. Second is the function of steam condenser. Third is the elements of the condensing plant. Fourth is the advantage of steam condenser. And fifth one and the last one is the classification of the steam condenser. The first slide, what is the basic need about the steam condenser? Condenser, that is a device which is used for the condensing of the steam, which is exhausting from the turbine side to reducing of the pressure and the expansion or condensation taking place at the below than the atmospheric pressure. And it can be done by the removing the heat by circulating the water. It is coming from the cooling tower sides. The working substance change its phases from the liquid to from vapor to the liquid phases when the condensation of the steam take place through the circulating water, and the exhaust pressure in the condenser is maintained nearly about the 7 to 8 kilopascal, which is corresponding to condensate temperature of nearly 313 Kelvin. Another theme of the function of condenser that is reduce the turbine exhaust pressure. टरबाइन का जो भी एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जिससे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है और आउटपुट बढ़ता है और उससे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जो रहता है वो रिड्यूस होता है. To condensate the exhaust steam from the turbine and reuse it, use the feed water. जैसे ही स्टीम कंडेंस होती है तो हम जो भी कंडेंसेट स्टीम होने के बाद वाटर मिलता है उसको रीयूज कर सकते हैं टरबाइन में, बॉयलर में वापस भेज करके. दस ओनली मेकअप वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट लॉस ऑफ वाटर. यदि कुछ वाटर की कमी हो रही बॉयलर की तो ही हम मेकअप वाटर सप्लाई करते हैं, अदरवाइज कंडेंसिंग स्टीम से जो लिक्विड होता है वाटर उसको ही हम रीयूज करते रहते हैं बॉयलर के अंदर. तो रिमूवल ऑफ एयर एंड द अदर नॉन कंडेंसेबल गैस इज रिक्वायर्ड. आपको बहुत जरूरी है ताकि हम हीट ट्रांसफर बराबर कर सकें. यदि एयर आ जाएगी तो हीट ट्रांसफर बराबर नहीं हो पाएगा. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कंडेंसिंग प्लांट? फर्स्ट इज द कंडेंसर. सेकंड इज द एयर एक्सट्रैक्शन पंप, एयर को निकालने के लिए यूज किया जाता है. थर्ड इज द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट को बाहर निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्शन पंप इस्तेमाल किया जाता है. फोर्थ इज द कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप, हॉट वेल, cooling tower, makeup water pump, and boiler feed pump. These are the elements required for the condensing plant. If any thermal power plant condenser, there will be also chances of the installing of the condensing plant, and there will be a number of component or element required for a smooth functioning of the condensing plant. This is the circuit diagram of the steam condensing plant, in which the working of condenser and its elements is describing clearly where the condenser is working. Here, this is the condenser is working where the steam is coming from the turbine side. This is the sign. So in the top and side, this is happening. Steam is coming from the turbine side going into the condenser side, and the condenser side, the condenser is also just like a heat exchanger. A heat exchanging is taking place between of the steam and the water. Water is coming from the cooling tower sides, and the cooling water is supplying by the pump, and the extra water is required, it is doing from the river side. And the cooling tower, it is supplied to the cooling water in the condenser side. And after that, the condenser side steam also it is used into the boiler side, where it is done by the another type of pump, air extraction pump. Air will be removed from the air extraction pump, and after that, if the steam is going into the prepared by the boiler side, then it will use another device from the condenser side, from the condenser side, from the condenser side, the hot water, it is collected at the bottom side at the hot well, and from the hot well, boiler supply to the water in the boiler through the feed pump. This is the main circuit diagram working. Advantage, what are the advantage? It increases the work done per kg of steam supplied. मेन जो एडवांटेज इससे मिलता है, स्टीम जो वर्क डन है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसिंग ऑफ द स्टीम इज टेकिंग प्लेस टू द पावर प्लांट. And it also reduces the specific steam consumption
स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन रिड्यूस होती है, देयरफॉर रिड्यूस द साइज ऑफ द पावर प्लांट ऑफ गिवन कैपेसिटी। तो यहाँ पे स्टीम कंजम्पशन यदि कम होगा तो उससे प्लांट की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ अपने को एडवांटेज के रूप में देखने को मिलती है। अनदर थिंग इज what are the advantage in this one? Thermal efficiency improve because of the, if the power output is increases, therefore there will be chances of improving the thermal efficiency. It affect a saving in cost of water to the supplied, जो water supply saving cost थी वो कम हो जाती है। And boiler, since the condensate is returned to the boiler, जो boiler रहता है वहाँ से वापस से हम condensate को boiler में भिजवा देते हैं। And the cost of water softening plant is also reduced. जो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होती है बिकॉज ऑफ प्योर फीड वाटर सप्लाई होता है। स्टीम जो है रिड्यूसिंग प्रेशर पे एक्सपांड होती है और कंडेंस होती है, और उसके बाद जो अपने को उससे प्योर फीड वाटर बनता है उसको सप्लाई बॉयलर के डायरेक्शन में किया जाता है। किससे तरीके से कंडेंसर को क्लासीफाइड कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड ऑफ द कंडेंसर? पहला है जेट कंडेंसर और मिक्सिंग टाइप। उसमें 4 कैटेगरी लिखी गई हैं। लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर, लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर, हाई लेवल जेट कंडेंसर एंड द इजेक्टेड जेट कंडेंसर। ये 4 तरह के जेट कंडेंसर हैं जो कि मिक्सिंग टाइप के रहते हैं। सरफेस कंडेंसर और नॉन मिक्सिंग टाइप के जो कंडेंसर है उसमें डाउन फ्लो, सेंट्रल फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, इवापोरेटिव टाइप, रीजनरेटिव टाइप। तो इस तरह के कंडेंसर जो है क्लासीफाइड किए जाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस इन द थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनामिक सब्जेक्ट। जेट कंडेंसर क्या होता है? जहाँ पे कि कंडेंसेट जो कि स्टीम कंडेंस हो रही है और जो वाटर है वो डायरेक्टली मिक्सअप होते हैं या मिक्सअप होकर हीट ट्रांसफर या बोलना चाहिए हीट एक्सचेंज होती है इन दोनों के बीच में और फेस चेंज होती है, उसको हम जेट कंडेंसर की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो जो फाइनल टेम्परेचर कंडेंसेट का रहता है और कूलिंग वाटर का रहता है इट इज सेम, तो ये दोनों सेम बना रहता है। सच कंडेंसर आर नॉर्मली यूज फॉर द स्मॉल पावर यूनिट। इन सब कंडेंसरों को हम छोटे पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बड़े पावर प्लांट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंडेंसेट मिलेगा आफ्टर द कंडेंसिंग वो मिक्सिंग टाइप का रहेगा और इट इज़ नॉट ए प्योर क्वालिटी। जब वो प्योर क्वालिटी का नहीं रहेगा तो उसको हाई स्टीम कैपेसिटी प्लांट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी यूज व्हेन द कूलिंग वाटर इज चीपली एंड द इजिली अवेलेबल। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कि इजिली क्या बोलते हैं आपको कूलिंग वाटर मिल जाएगा, या बोलना चाहिए कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। एंड नॉट एम्प्लॉय देयर द कंडेंसेट कैन बी यूज इन द बॉयलर। वहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जहाँ पे कि कंडेंसेट को हम बॉयलर में वापस से यूज कर सके, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है स्टीम की वाटर के साथ में, डायरेक्टली मिक्सिंग हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ में कंडेंसेट आपको जो मिल रहा है और वो कंडेंसेट को हम वापस से यूज नहीं कर पाएंगे। और लो कैपेसिटी प्लांट में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हाई कैपेसिटी प्लांट में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लो लेवल, जहाँ की बहुत बोलना चाहिए लेवल कम रहता है, जहाँ पे मिक्सिंग जो है लो लेवल पे की जाती है, उसे लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर बोलते हैं। पैरेलल फ्लो का मतलब होता है स्टीम और वाटर सेम डायरेक्शन में यदि फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे आपका पैरेलल फ्लो होगा। तो एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर बोथ फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, and wet air pump is used to the extract the mixture of the condensate air and the coolant. This limit the vacuum created in the condenser up to the 600 mm of Hg. This is the main theme of the low level parallel flow jet condenser. So this is a diagram in which showing the working exhaust steam, cooling water is supplying from this side, exhaust stream is coming from this side, and the direct mixing is taking place. Condenser cell is making on this sides. Wet air pump where the extraction of the condensate is coming, and if the air is in the system is counted, there will be a chances of to extract the air from the wet air pump, and condensate air and coolant it is passing through the bottom side which is collected for the useful purpose. तो अपने को यूजफुल पर्पस के लिए कंडेंसेट को बॉटम साइड पे हम कलेक्ट कर देते हैं। This is the first type. And second type, low level counter flow, where the steam and the water both are moving in the opposite direction. The cooling water is supplied from the top of the condenser and the steam from the side of the condenser. That is the example of the counter flow. And the water flow in the downward direction through a series of perforated tubes, trays, and the steam get condensed while it comes in contact with the
फॉलिंग वाटर, पानी जो है ऊपर से यदि स्ट्राइक कर रहा है और स्टीम एक साइड से आ रही है, तो स्टीम यदि ऊपर से फॉल्स हो रही है तो उसके द्वारा परफेक्टेड ट्रेस में यदि जा रही है, या बोलना चाहिए वहां से यदि वाटर स्ट्राइक कर रहा है, तो दोनों के मिलने से जो वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है, उससे वाटर जो है नीचे इकट्ठा होके उसको कलेक्ट किया जा रहा है, और जो कंडेंसेट है उसको अलग हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो कंडेंसेट जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, उसको हम बॉटम साइड पे इजिली रूप में कलेक्ट कर सकते हैं। द एयर पंप ऑलवेज मेंटेन द रिक्वायर वैक्यूम, एयर पंप का जो मेन काम रहता है वो वैक्यूम बनाने का रहता है कंडेंस में, और इंट्रोड्यूस द कूलिंग वाटर टू बी फिल्ड इनटू द कंडेंसर अप टू ए हाइट ऑफ, क्योंकि अब ये लो लेवल है तो उसकी हाइट जो है 5.5 मीटर मेंटेन की जाती है। द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कंडेंसेट फ्रॉम द हॉट वेल फ्लोज इनटू द कूलिंग पॉन्ड बाय एन ओवरफ्लो पाइप, जितनी भी एक्सेस अमाउंट का कंडेंसेट है हॉट वेल से जो निकल के आ रहा है कूलिंग पॉन्ड में जा रहा है, उसको ओवरफ्लो पाइप से हम निकाल के रख लेते हैं। तो ये आपका दिख रहा है लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर। इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो कूलिंग वाटर है इट इज कमिंग फ्रॉम द cooling pond side, this is the cooling water, and the steam which is coming from the side by side of the cell, steam is coming from this sides, cooling water is attacking of the top and sides, okay, and the condensate and the coolant which is coming on the hot well, कंडेंसेट एक्सट्रैक्टेड पंप जो है यहाँ पे लगा गया है, जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे आपका कंडेंसेट एक्सट्रैक्ट पंप लगा है, एक ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ है जो कि हॉट वेल से आपको कूलिंग पॉइंट की तरफ ले आता है। तो दिस इज द सिंपल वर्किंग ऑफ द लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर। फीड वाटर जो है बॉयलर के लिए यहाँ से सप्लाई किया जाता है, जब आपका यहाँ पे पानी गर्म रहता है तो उस गर्म पानी को बॉयलर पे सप्लाई किया जाता है। कंडेंसर जो बैरोमेट्रिक जेट टाइप का है, तो कंडेंसर सेल को इंस्टॉल किया जाता है हाइट पे, जिसकी हाइट 10.33 मीटर रहती है। A tall pipe more than 10.33 मीटर लेंथ इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द कंडेंसर। जो बड़ा पाइप रहता है उसको हम कंडेंसर के नीचे लगा देते हैं ताकि वो कंडेंसेट को कलेक्ट कर सके और कूलेंट को डिस्चार्ज